صحرا کی پیلی ریت سے جنم لینے والے اس کندن کی داستان، جس کے سینے میں انتقام کا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں پر قہر بن کر نازل ہونے کے لیے سروے آفیسر کے بھیس میں دشمن کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ موقع ملتے ہی اس نے دشمن کے خون کی ندیاں بہا دی، مگر کاتب تقدیر نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ مجبوری میں اٹھایا ہوا ایک قدم اسے سرحد پار بھارت لے گیا۔ اسے بھارت میں پاکستان کے دشمنوں کو ختم کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ جہاں اس پر انکشاف ہوا کہ بھارتی راہ پاکستان میں اپنے ایجنٹوں سے خود کش حملے کروانے جا رہی تھی۔ ان بھارتی ایجنٹوں کا کلا کما کرنے کے لیے اسے پاکستان لوٹنا پڑا۔ لیکن جلد ہی بھارت میں اس کے لیے نیا مشن تیار تھا۔ سسپنس اور جاسوسی سے بھرپور سنسنی خیز داستان الاؤ۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرام، آپ سن رہے ہیں الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی ایک قسط سن چکے ہیں، اب قسط 2 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع کریں۔ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بھاگ کر جانے کی ذرا ہمت تو دکھاؤ۔ ایک نے گراتے ہوئے کہا تو میں کراہتا ہوا وہیں چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بھی ارد گرد پھیل گئے۔ مجھے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی، مگر اب مجھے صبر ہی کرنا تھا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے ذرا فاصلے پر ایک سراہی رکھی تھی جس سے وہ پانی پی رہے تھے۔ مجھے بھی پیاس لگی تھی، میں نے پانی مانگا۔ اٹھ کر پی لے، میرے ہاتھ کھولو گے تو پیوں گا نا، میں نے کہا۔ چلنا میں وہ سوچتے رہے، پھر ایک نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے سراہی کے پاس پڑے پیالے میں پانی بھرا، پھر پانی پی لیا۔ وہ ذرا سا نمکین تھا لیکن غنیمت تھا۔ میں پانی پی کر لیٹ گیا۔ میں بہت تھک چکا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے بازو میں درد مچل کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ چاروں جانب سناٹا تھا، آدھی رات ہونے کو آ گئی تھی۔ رکی ہوئی ہوا دھیرے دھیرے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تاروں کی روشنی میں اندھیرا کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں اپنے نشان ضرور ثبت کرتا ہے، اس کے وہاں ہونے کا احساس رہتا ہے، وہ چاہے کچھ وقت کے لیے یا تادیر نشانیاں چھوڑ جائے۔ یہی تاریخ ہوتی ہے۔ یہ ڈیرا بھی اپنے اندر بڑی تلخ یادوں کو سموئے ہوئے تھا۔ اس چار دیواری کے اندر کتنے انسانوں کی چیخیں گونجتی تھیں۔ یہ خاموش تر و دیوار گواہ تھے کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا اور کسے سزا دی گئی۔ میرے سامنے جیسے منظر اگ پڑا تھا۔ وہ گرم موسم کی دوپہر تھی جب بستی کے 2 افراد کو یہاں ڈیرے پر لایا گیا۔ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے میرن شاہ کے باپ سیدن شاہ کی حکم عدولی کی تھی۔ اس نے اپنا ریوڑ چرانے کا حکم دیا تھا۔ ان 2 افراد نے سیدن شاہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم کیا تھا انہوں نے۔ جب وہ دونوں ڈیرے پر لائے گئے تو وہ لہو لوہان تھے۔ سیدن شاہ کے کارندے انہیں ان کے گھروں سے مار پیٹ کر یہاں لائے تھے۔ ان کی آہیں اور سسکیاں گونجن لگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سیدن شاہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جہاں میں چارپائی پر پڑا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر سیدن شاہ ایک چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ایک کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، دوسرے کے سینے کے پاس خون سے قمیض بھیگی ہوئی تھی۔ دونوں ہی تکلیف کی شدت سے کرا رہے تھے۔ سیدن شاہ نے انتہائی نفرت اور غصے میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا،
तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई मेरे रेवड़ न ले जाने की? साईं, मेरी माँ बीमार है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। एक ने एहतजाज भरे लहजे में कहा तो सैदन शाह हत्थे से उखड़ गया। उसने ये नहीं पूछा कि उसकी माँ किस कदर बीमार है, वो क्यों नहीं जा सकता। उसने अपने बंदों को हुक्म दिया कि इसे लंबा करके छितर मारे जाए। अगले लम्हे उसके बंदों ने हुक्म की तामील करते हुए उसे जमीन पर उल्टा लिटा दिया। फिर जोर जोर से जूते मारे जाने लगे। नीचे पड़े हुए इस बंदे की चीखें निकलने लगी। सैदन शाह ने दूसरे से कुछ नहीं पूछा, बल्कि वैसा ही करने का हुक्म दिया। इसके बंदे पहले वाले को छोड़कर उसे भी लंबा लिटाकर मारने लगे। इसकी चीखें भी बुलंद हो रही थीं। कुछ देर तक ये जुल्म चलता रहा। वो मारने से ज्यादा इन्हें जलील कर रहे थे। ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही थी कि आम हालात में किसी को दी जाए तो वो मरने मारने पर उतर आए। वो दोनों मार खाते रहे, चीखते रहे, यहां तक कि वो माफी तलाफी करने लगे। रेवड़ न चराना तो बहाना था, असल बात यही रही होगी कि वो सैदन शाह को अच्छा नहीं समझते थे। कोई भी जालिम हाकिम अपनी राइयत में किसी बागी को पसंद नहीं करता, यही तारीख है। शायद वो भी कोई ऐसा ही बागी था। वो भी इसी डेरे के सेन में रस्सियों से बना पड़ा था। वो लहू लहान था। वो बस्ती का नहीं था, कहाँ का था ये भी मालूम नहीं था। वो बड़ा गबरू जवान था। वो इस हालत में भी सैदन शाह के बंदों को गालियां दे रहा था। मालूम नहीं उसका जुर्म क्या था। सैदन शाह के साथ उसकी बड़ी तलख कलामी हुई थी। यहां तक कि सैदन शाह ने अपनी कलहाड़ी का वार किया तो उसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा था। यह मंजर बड़ा खौफनाक था। पता नहीं वो बंदा मर गया था या जिंदा था, क्या हुआ था उसके साथ। तारों की रोशनी में मुल्कजा अंधेरा फिर मेरे इर्द गिर्द छा गया था। बाकी सब सो गए। मुझसे फासले पर बैठा एक बंदा अभी तक जाग रहा था। वो बूढ़ा जिसने फाटक खोला था अब उसके पास आकर बैठ गया था। वो दोनों बातें कर रहे थे। मैं सो जाना चाहता था लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी आंखों के सामने उस डेरे पर खोने वाले कई मंजर लहरा गए थे, कुछ अधूरे, कुछ नामुकम्मल से। किसी में कोई चेहरा शनासा था, कोई अजनबी था, कोई बात अधूरी थी, कोई जुमला कानों में गूंजा था। फिर मंजर एक दूसरे में गडमड होने लगे। सुबह की नीलगूं रोशनी हर जानिब फैल चुकी थी। मैंने करवट ली तो मेरे बाजू में दर्द का एहसास हुआ। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। मैं डेरे की एक खरी चारपाई पर पड़ा था। सेन में किसी दूसरी चारपाई पर कोई भी नहीं था। मैं भी कसलमंदी से पड़ा था कि दीवार के छोटे दरवाजे से एक लंबा तिरंगा अधेड़ उम्र शख्स निकल कर डेरे पर आ गया। उसने हल्के नीले रंग की धोती और कमीज पहन रखी थी। सर पर सफेद रंग की पगड़ी बांधे हुए था। इसके भारी चेहरे पर खजाब ज़दा स्याह मूछें और हल्की हल्की सफेद दाढ़ी थी। वो मेरी जानिब शक भरी निगाहों से देख रहा था। उसके सेन में आते ही 3-4 बंदे किसी तरफ से निकल कर वहां आ गए। उसके पीछे भी 2 आदमी थे जिनके हाथों में गन्ने थी। मैंने अंदाजा लगाया कि यह मीरन शाह हो सकता है। मैं उसे देखते ही उठ गया। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो एक बंदे ने कहा, सही ये बंदा रात हमारे हाथ लगा था, कह रहा है कि ये आपका मेहमान है। मुझे यकीन हो गया कि यही मीरन शाह है। उसने माथे पर देवरियां चढ़ाते हुए मुझसे बड़े तहकीर अमेज लहजे में पूछा, कौन हो तुम, मेरे मेहमान कैसे हो? मुझे उसका लहजा बुरा लगा था। उसके जवाब से मैं समझ गया कि उसे अब तक पता ही नहीं है, और अगर पता है तो ये इंतहाई बेहुदा इंसान है। इसलिए मैंने भी कोई लिहाज किए बगैर कहा, मैं सरकारी एहलकार हूँ और लाहौर से यहाँ आया हूँ। इस इलाके के MPA ने मुझे मिन्तेक करके यहाँ भेजा है। क्या तुम जानते नहीं हो? न चाहते हुए भी मेरे लहजे में उकताहट और गुस्सा झलक पड़ा था। उसने हैरत से मेरी जानिब देखा। शायद उसे गुमान भी नहीं था कि मैं उससे इस तरह बदतमीजी से बात करूंगा। उसने बताया तो था कि कोई सर्वे के लिए आने वाला है, लेकिन ये तो 2 महीने पहले की बात थी और तुम अब आए हो। उसे याद करते हुए कहा, ये पूछो अपने MPA से किस किस की मिन्नत नहीं कि उसने यहाँ आने के लिए। मुझे भी नहीं आना चाहिए था। हमारा तो काम है वीरानों में जाने का, लेकिन यहाँ जैसे उजड़ और बदतमीज लोग मैंने पहले कभी नहीं देखे। मैंने गुस्से में कहा तो उसने तहम्मुल से मेरी जानिब देखा, फिर मेरे सामने पड़ी चारपाई पर बैठ गया। ये दरअसल एक बंदे के पीछे। उसने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, ओ शाह जी, ये भी कोई बात हुई भला? मैंने बताया भी कि मैं कौन हूं, मगर अपनी नाकामी का गुस्सा मुझ पर उतारने लगे। क्या किया इन्होंने? उसने धीमे से पूछा। मैंने बता रहा था कि मैं मीरन शाह का मेहमान हूं, लेकिन इनमें से किसी ने मेरे कंधे पर गन का बट मार दिया। मुझे जलील करने के लिए बांध कर यहाँ लाया गया। जब मैं यहाँ खुद आना चाह रहा हूं तो यूं कैदी बनाकर लाने का क्या मतलब था? इतने डरपोक और बुजदिल बंदे रखे हुए हैं तुमने, एक बंदा भी बांध कर लाए हैं ये। मैंने जानबूझकर हतक अमेज लहजे में कहा, खैर ये अच्छा नहीं हुआ। उसने मेरी मूंछ पर हाथ फेरते हुए कहा, फिर लम्हा भर बाद बोला,
अब तुम्हारे माथे पर थोड़ा लिखा हुआ है कि तुमको यहाँ आना है या तुम सरकारी मुलाजिम हो? मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरे बारे में अगर तस्दीक करनी है तो अपने MPA से पूछ लो। दूसरा, मेरे सारे कागजात उस बैग में थे जो रेहड़े पर रह गया है, वरना मैं अपनी शनाख्त अभी दिखा देता। मेरे कहने पर मीरन शाह के चेहरे पर सख्ती कम हो गई। उसने अपने एक बंदे से कहा, वो कौन था रेड़े वाला? वस्सू था जी, खैरू वाले टोबे का। इस बंदे ने फौरन जवाब दिया, जाओ उससे बैग लेकर आओ। उसने हुक्मिया लहजे में कहा तो वो फौरन वहां से चला गया। मीरन शाह ने कुछ देर मेरी तरफ देखा और बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, कुछ देर बाद तुम्हारा बैग आ जाएगा, फिक्र ना करो। तुम उठ कर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े भेजता हूँ, वो पहन लेना। मुझे पता है तुमने रात से कुछ खाया नहीं। वो भी नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मेरा बैग आ जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अपने MPA से कहना वो मेरी जगह कोई दूसरा बंदा यहाँ भेज देगा। मैंने कहा तो वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर बड़े संजीदा लहजे में बोला, तुम पढ़े लिखे हो, बात को समझ सकते हो। ये वाकई अजड हैं, इन्हें कौन समझाए। इनकी ये गलती नज़रअंदाज कर दो, आइंदा ये ख्याल रखेंगे। मुझे यहाँ सर्वे करना है, इस इलाके में मुझे फिरना है, देखना है। यूं तो कोई भी मुझे पकड़कर अपना कैदी बना लेगा। लगता है शाह जी तुम्हारा रोब नहीं इस इलाके पर। मैंने तंजिया अंदाज में कहा तो बेख्तियार हंस दिया, फिर मुस्कुराते बोला, और नहीं, मेरे हुक्म के बगैर यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम आज़ाद होकर अपना काम करना, कोई उंगली का इशारा भी नहीं करेगा। मुझे बताओ, इतनी जिल्लत के बाद भी कोई यहाँ ठहरेगा? मैं फिर से अड़ गया। मेरे लहजे में उकताहट थी। और नहीं, अब कुछ नहीं होता। वैसे नाम क्या तुम्हारा? उसने पुरस्कून लहजे में पूछा तो मैंने धीमे से कहा, मेरा नाम अली है। ठीक है अली, तुम ताज़ा दम हो जाओ, नाश्ता करो, इतने में बैग आ जाएगा, फिर जो फैसला करना हो कर लेना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस पर मैं खामोश रहा तो वो बोला, एक बात तो बताओ। पूछो, मैंने हुनकारा भरने वाले अंदाज में कहा। तुम लाहौर से यूं खाली हाथ निकल आए थे, सिर्फ बैग था तुम्हारे पास? उसने तंजिया लहजे में पूछा। उसने बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया था और इस सवाल की मुझे पूरी तवक्का थी, सो मैंने कहा, मैं अपने सरकारी जीप पर आया था, लेकिन यहाँ करीब जो कस्बा है माना वाला, वहां पर खराब होगी। मैंने वहीं के एक मिस्त्री को दिखाई, उसने बताया कि सुबह तक ठीक होगी। जीप मैंने उसके पास छोड़ दी कि सुबह ले लूंगा, मेरा सामान उसी में है। मैंने उसे भी यही बताया था कि मैं मीरन शाह का मेहमान हूँ। मिस्त्री शायद इसी वजह से मुझे मोटरसाइकिल पर वहां छोड़ गया जहां से रेड़े वाला मुझे मिला था। आगे जो हुआ, खैर कोई बात नहीं, अब तुम हमारे मेहमान हो। उसने बड़े सुकून से नर्म लहजे में कहा। मेहमान? मैंने कहना चाहा तो वो बोला, ये सामने वाला कमरा ले लो, इसमें रहो, ये बाबा खैरदीन यहीं रहता है डेरे पर, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। किसी शय की जरूरत हो तो उसे कह देना, ये हाजिर कर देगा। ठीक है, मैं देखता हूँ 1-2 दिन। मैंने अपनी नीम रजामंदी जाहिर कर दी तो उसने मेरी जानिब से रुख फेर कर सामने खड़े अपने बंदों से कहा, ओए बेगैर, तो वो बंदा किधर गया जिसे तुम पकड़ने गए थे? सामने खड़े सभी लोग खामोश थे, इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। चंद लम्हों बाद एक बंदे ने हाथ बांधते हुए कहा, साईं, यकीन जाने हम मौका पर पहुंच गए थे। हमें पता चल गया था कि वो रेड़े पर सवार है। हमने घूमकर आगे से उसे घेरा था। वो कहानी मत सुना बेगैरत, उसने गुस्से में कहा। वो हमें दिखाई ही नहीं दिया, रेड़े पर यही तो मिला, हम इसे पकड़ कर ले आए। वो अब तक इसी इलाके में होगा। अगर वो निकल गया तो समझो तुम सबकी खैर नहीं। अभी निकलो और पता करो वो किधर गया, किसके पास है, ढूंढो उसे। उसने धाड़ते हुए कहा, फिर उठकर वापस उसी दीवार की जानिब बढ़ गया जिसमें छोटा सा दरवाजा था। मैं चारपाई पर बैठा रहा। वो सब लोग वहां से जीप में बैठ कर चले गए। मैं अकेला वहां रह गया। रात के कैदी होने और अब मेहमान बन जाने में बड़ा फर्क था। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, बाजू में हल्का हल्का दर्द बेचैन कर रहा था। ये सब अपनी जगह एक हकीकत थी, लेकिन मैं कुछ और ही सोचते हुए लाशौरी तौर पर इन बातों को सानवी हैसियत दे रहा था। ये लो कपड़े। बूढ़ा खैरदीन मेरे सामने खड़ा था। उसका नाम बड़ा जाना पहचाना था। तब से तजस्सुस था कि उसे गौर से देखूं। मैंने देखा, वक्त ने उसके चेहरे पर बड़े गहरे नक्श छोड़े थे, लेकिन वही नक्श उसकी पूरी शनाख्त रखते थे। मैं सिर्फ बूढ़े खैरदीन ही को नहीं देख रहा था, बल्कि उसके साथ जुड़ी उस सावरी को भी महसूस कर रहा था जो अपने पल्लू में खाने की चीजें बांधा करती थी। और भाई ये लो कपड़े, उसने दोबारा कहा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गया। मैंने वो कपड़े ले लिए। वो एक नई धोती थी और उसी रंग की एक कमीज थी।
मैं नहाऊंगा कहाँ, मैंने पूछा। वो सामने। उसने एक नुक्कड़ की तरफ इशारा किया जहाँ छोटी छोटी दीवारें करके ओट बना दी गई थी। मैं पानी रख देता हूँ। एक बार तो मेरा दिल चाहा कि इससे यह खिदमत ना लूं, मगर फिर मैंने दिल पक्का कर लिया। कपड़े एक तरफ रखकर मैं फिर लेट गया ताकि वो पानी भर ले तो मैं नहा लूं। मैं नहा कर पलटा तो सूरज निकल आया था। बरामदे में बड़ी चारपाई पर नाश्ते से भरी ट्रे रखी थी। पराठे, मक्खन और लस्सी की महक ने मेरी इश्तहा बढ़ा दी थी। मैंने डट कर नाश्ता किया और वहीं चारपाई पर लेट गया। मैं जी भर कर सोना चाहता था। दोपहर होने को थी जब मेरी आंख खुली। पहली निगाह उस सरकारी जीप पर पड़ी जिसमें मैं माना वाला तक आ गया था। मेरे निशाह ने वो जीप मंगवा ली थी या मिस्त्री वहां छोड़ गया था। मैं उठा और जीप तक गया। इसमें से अपना सूटकेस निकाला और कमरे तक ले आया। मुझे धोती में उलझन हो रही थी। मैंने शलवार कमीज पहनकर खुद को पुरसकून किया, फिर पेन किलर ली ताकि मेरे बाजू का दर्द कम हो जाए। गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन कमरे में हबस था। मैं बरामदे में आकर लेट गया। मुझे सावरी याद आने लगी। गोरी चिट्टी, तीखे नैन नक्श वाली, भूरे से बाल जो तेल में चुपड़े रहते थे। उससे अपना भोजन नहीं संभाला जाता था। हमेशा दाएं हाथ से कंधे पर टिकाती रहती थी। बचपन से जवानी तक अगरचे चेहरे के नकूश वही रहते हैं, लेकिन इतनी तब्दीली आ जाती है कि बंदा पहचाना नहीं चाहे। इसका तजर्बा मुझे हो गया था। अब सावरी ना जाने कैसी होगी। वो पुराना बचपन तो ना जाने कब से पीछे छोड़ चुकी होगी। अगर वो अचानक सामने आ गई तो क्या वो पहचानी जा सकेगी? ये सोचते ही दिल इतना तेज तेज धड़कने लगा जैसे अभी बेकाबू हो जाएगा। बेटा कोई शय चाहिए? बाबा दीन की आवाज पर मैं चौंक गया। वो मेरी चारपाई की पायंती की जानिब खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने फौरन उठकर बैठते हुए कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भूख तो लगी होगी? उसने पूछा। हाँ थोड़ी बहुत, मैंने सर हिलाते हुए कहा। तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। दोपहर की रोटी तो तैयार थी। वैसे दोपहर को लोग इधर खाना नहीं खाते हैं। उसने मुझे वहां के मामूल के बारे में बताया। कोई बात नहीं, मैं शाम को खा लूंगा। बाबा तुम परेशान न हो, कम से कम मेरी वजह से परेशान तो होना ही नहीं। नहीं जी, मैंने क्या परेशान होना? अब साईं ने खिदमत पर लगा दिया है तो मेहमान की खिदमत तो करनी ही है ना। उसने बड़ी बेचारगी से कहा तो मेरा दिल भर आया। उसे बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अपने लफ्जों को होंठों तले दबा लिया। तभी मैंने उसे कहा, आओ बाबा इधर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे कहने पर वो सामने पड़ी चारपाई पर बैठते हुए बोला, हाँ पूछो। तुम इसी बस्ती के हो ना? मतलब यहीं रहते हो? एक फजूल सा सवाल था लेकिन ये पूछे बिना चारा नहीं था। इसने अपने झुर्रियों भरे चेहरे से मेरी तरफ देखा और धीमे लहजे से बोला, हाँ मैं यहीं पैदा हुआ, तब से यहीं इसी बस्ती में रहता हूँ। मतलब शादी भी यहीं हुई और बच्चे भी? मैंने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। हाँ मेरी बीवी तो अब नहीं रही, एक बेटा है और एक बेटी। बेटे की शादी हो गई है लेकिन बेटी की अभी नहीं हुई। उसने बताया तो न जाने मुझे क्यों खुशी महसूस हुई। सावरी की अभी शादी नहीं हुई थी। वो कहाँ थी ये मैं पूछ नहीं सकता था, इसलिए जानबूझकर मौजू बदल दिया। अगर मैं ये पूछूं कि इतनी जिंदगी में तुम्हारे नजदीक यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, तो? मेरे पूछने पर उसने एक बार मेरी जानिब देखा जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो, फिर जैसे उसके चेहरे पर ठहराव सा आ गया। वो अपने होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, जुल्म। यहाँ सबसे बड़ा मसला जुल्म है। कैसा जुल्म बाबा? मैंने तेजी से पूछा। यही जुल्म कि यहाँ इंसान और जानवर एक ही टोबे से पानी पीते हैं। एक जानिब इंसान पानी भर रहा होता है तो दूसरी जानिब कुत्ता अपनी प्यास बुझा रहा होता है। क्या ये जुल्म नहीं है? उसने बड़ी खूबसूरती से बात को मोड़ दिया था। मैं तो यही समझा था कि वो मीरन शाह या उसके बाप सैदन शाह के मुजालिम कनवाएगा। वो बताएगा कि यहाँ खून किस कदर अर्जा है। हाँ पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ टोबे भी मेरा ख्याल है अभी कच्चे हैं। मैंने यूं ही पूछ लिया। हाँ कच्चे हैं, उसने सुकून से कहा। अच्छा बाबा कोई नौजवान लड़का यहाँ मिल जाएगा जो इस सारे इलाके से अच्छी तरह वाकफियत रखता हो? मुझे सारे इलाके में फिरना है, मैंने उससे पूछा। ये बात तुम साईं मीरन शाह से कहना, वो तुम्हारे साथ को बंदा भेज देगा। अब बताओ अगर कुछ खाना पीना है तो? ये कहते हुए वो उठ गया। नहीं, मैंने कहा तो मुझे याद आ गया। तब मैंने जल्दी से पूछा, बाबा वो मेरा बैग जो रेड़े पर रह गया था वो अभी नहीं आया। उसने कहा और मीरन की रहाइश की जानिब पड़ गया। मैं फिर से लेट गया। मेरे जहन में एक और तस्वीर उभरने लगी थी।